व्यूअर, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन। सो आज का क्वेश्चन जो आया है सीधा इंटरनेशनल फोरम से हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, वो है एलिमेंट्स बिफोर नो एलिमेंट इज बिगर। Explanation itself is clear in this statement because it's not a two words, it's completely a sentence. But still, what's the explanation? Still, if you are inferring that, okay, this statement is sufficient for the question, still I'll prefer you read the whole question statement. Why? Because it will make the things more clearer. You will be understanding that what actually the question is expecting from you and how to solve it. Because I have seen many of the students, many of the interviewees who have done like this, just the first statement, and they started proposing the solution. They hadn't asked the clarifying questions, because of which the solution which they have proposed, they need to change it around 3 to 4 times. That's not something that you want to happen with yourself. That's why it's really, really necessary to read the question statement as well as the question explanation. Even though it is self-explanatory, but still I'll encourage you all to do this. Now, this is the question, but first we discuss its significance, because why you need to practice this question, what's the significance of this, how many times this question has been asked. Okay, so this question has been asked around from the FAANG companies in past how much time? In past 9 months, it has been asked around 25 plus times. It has been asked around 25 plus times. That's not simple, or I should say, it's not a lesser number. 25 times. If you have like any question and you have prepared for it, then it's always good for you, because it will help you to solve the question, to approach the question in the interview with more confidence. So this is the significance of the question. Now let's go through and read the question sentence by sentence. So you are given an array A of size n. Okay. The task is to find count of elements before which all the elements are smaller. First element is always counted as there is no other element before it. Okay. So what we need to do is, let's go to the example which has been stated there. Just a minute. Yeah. So here the input is 10, 40, 23, 35, 50 and 7, and the output is 3. Let's understand how the output was 3.
they had told first element is always counted. Okay, so this is our count 1, output count 1. Next comes 40. Before 40 we have only 10. Okay, and before 40 we have only 10 and 10 is smaller than 40. 40 से छोटा है 10, so it will also increment. So here the count value is 2. Now the comes is 23. Is 23 smaller than 40? Oh, sorry, is greater than 40? No. So the loop will continue. Then 35, no change. 50. All of the elements before this are smaller? Yes. So this will make my count value to 3. And next is 7. 7 has like the largest element before it is 50. So 7 won't count, so the loop will end or the output will end. This is how the output is 3. So now we have understood that what is actually happening. Let's discuss the approach now. I will erase all this so that it will help us to understand the approach and approach better. So first thing is, we could solve this. The main idea behind this is, इसको सॉल्व करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि चीजें मैटर क्या करती हैं इसके अंदर. चीजें मैटर ये करती हैं कि हमने लास्ट लार्जेस्ट नंबर, विच लार्जेस्ट नंबर एट लास्ट वी हैव एनकाउंटर्ड. लेट्स से अगर मैंने 10 को लास्ट बड़ा नंबर एनकाउंटर करा है, मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट्स से टेम्प लार्ज, एंड इसमें मैंने वैल्यू डाल दी है 10. अब जब 40 की बारी आई, 40 की बारी में मैंने 40 को टेम्प लार्ज से कंपेयर करा. क्या 40 टेम्प लार्ज से बड़ा है? यस. तो मैंने यहां टेम्प लार्ज की वैल्यू कर दी 40. नाउ अब मेरे पास आया 23. क्या 23 40 से बड़ा है? नहीं. तो ये चलता रहेगा. 35 40 से बड़ा है? नहीं. 50 40 से बड़ा है? यस. तो यहां पर 40 को कट करके मैंने यहां वैल्यू टेम्प लार्ज की 50 डाल दी. एंड देन 7 एंड लूप एंड. ओके, अब ये जो 3 चेंजेस करे हैं मैंने, इन्हीं को मुझे ट्रैक करना है बेसिकली. तो यहां लेट्स से एक वेरिएबल ले लिया मैंने काउंट, जिसको जब जब हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तब तब हमें इसे इंक्रीमेंट करना है, तब तब हमें इसे इंक्रीमेंट करना है. तो इनिशियली इट इज 0. जब 10 से मैंने 40 चेंज करा तो इट विल बी 1, या फिर हम इसे 1 कह सकते हैं बिकॉज फर्स्ट आउटपुट विल ऑलवेज बी काउंटेड. तो जब हमने 10 से 40 चेंज करा +1 कर देंगे तो 2. 40 से जब हमने 50 चेंज करा तो +1 कर देंगे विच विल बी 3. सो दिस इज द आउटपुट. काउंट इज इक्वल्स टू 3. दैट्स हाउ दिस इज कमिंग. तो अब हम इसकी अप्रोच तो समझ ही गए हैं. अब एक्सप्लेनेशन या कोड पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं. तो कोड पर्सपेक्टिव के अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है, एक हमने चला दिया फॉर लूप i इक्वल्स 0 या 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस. ठीक है, यहां पर हमारे पास एक वेरिएबल रहेगा टेम्प, जिसके अंदर हम a ऑफ 0 को स्टोर कर देंगे. ठीक है, अब हम आएंगे नीचे. नाउ इफ एरे या a ऑफ i इज ग्रेटर देन है हमारा टेम्प के, देन we'll increment the count and we will change the value of temp to a of I, and then at last I'll return this count only. So हो क्या रहा है, हमने एक लूप चलाया है 1 से लेकर n तक. हम उसे कंपेयर कर रहे हैं हमारी टेम्परेरी वैल्यू के साथ में, जो कि है a of 0, क्योंकि ये हमेशा रहेगा. हमने काउंट एक वेरिएबल लिया है जिसे हम इनिशियलाइज यहां पे करेंगे 1 से. ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं. नीचे आकर हम कंपेयर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं एंड देन रिटर्न कर दे रहे हैं. आई होप एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट इट डाउन. डोंट हेजिटेट टू कमेंट. आई डेफिनेटली गो थ्रू देम एंड ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, डाउट्स, explanations, etc. as soon as possible. So now let's discuss, let's write the approach first. So here what we are doing is, we will run a loop which
with two variables, the first variable will maintain the largest element encountered in the array at that position, या until that position. Okay, so we will run a loop with two variables. First element will maintain the largest element encountered in the array until that position. If what happened? If the element or the largest element is changed, then the second variable will be incremented by 1. Okay, now let's discuss the time complexity of this solution and the space complexity of the solution. So space complexity, what do you think? How much it will be? We are only taking two variables and nothing more than that. So the space complexity will be O of 1. Whereas the time complexity, we are just running a loop and everything will be computed in that. So the time complexity will be O of n. For this question, the time complexity cannot be reduced further. That's for sure. So हमारा ये solution most optimal भी है and most easy to understand भी है. Again, अगर अंडरस्टैंडिंग में कोई भी दिक्कत आती है, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू होता है, डाउट होता है, किस पोर्टल से करना है, क्या करना है, मेरा इंटरव्यू आ रहा है, उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, then definitely mention in comments and I'll try to respond to that as soon as possible. Now let's move. हमारा मेन पार्ट जो है वो हो गया क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वीडियो का, दैट इज कोडिंग. सो अब हम चलते हैं कोडिंग पर. एंड नाउ दिस इज द क्वेश्चन. इट इज फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स. इट इज अ बेसिक क्वेश्चन. सबमिशंस इसके 4K प्लस हो चुके हैं. डजंट मैटर्स. पॉइंट्स इज 1. सो लीड कोड में देयर इज नो पॉइंट सिस्टम, बट हियर देयर इज अ पॉइंट सिस्टम. तो आप जितने क्वेश्चंस करोगे यू विल गेट दोज पॉइंट्स. दिस वन इज बेसिक क्वेश्चन, तो ये 1 मार्क्स का है. इजी क्वेश्चंस या और थोड़ा ऊपर जाओगे तो इट विल बी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड सो ऑन. ओके, सो अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ऑल्दो यही एग्जाम्पल हमने अंडरस्टैंड करा था, मतलब कि अप्रोच हमने इसी से समझी है. नाउ इधर देखते हैं. एग्जाम्पल के अंदर वी हैव 5 4 1. दूसरा एग्जाम्पल, सो हियर इट इज output is 1. Why? Because 5 will always be encountered. 5 will always be counted there. Okay, 4 and 1 both are smaller, तो कोई वैल्यू आगे चेंज ही नहीं हुई बेसिकली. तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में है 1. ठीक है, यू डोंट नीड टू रीड input or print anything. Your task is to complete the function count element which takes the element which takes the array of n and its size n as inputs and returns the number of elements before which no longer element is bigger. No element is bigger, basically. Expected time complexity O of n and next space complexity O of 1, which we are satisfying through the solution. So now let's just jump on to the coding part. So int I temp and count, which will initially be 1. Okay, and here I'll say for I equals 0, I is less than n, I plus plus. If I is equal 0, then I'll do temp array of I and continue. Else if अगर we have बड़ा एलिमेंट, then temp से, यानी कि temp जो है वो छोटा है array of I से currently, then हमने क्या करना है, temp के अंदर डाल देंगे array of I and count को कर देंगे प्लस प्लस. ठीक है, और फिर रिटर्न कर देंगे काउंट को. बेसिक सिंपल. यहाँ अगर अगर हमारे पास 0 है, ये मैं इधर क्यों इनिशियलाइज कर रही हूँ, मैंने ऊपर क्यों नहीं करा? बिकॉज लेट्स सपोज हमारे पास n 0 आ जाता है, तो यहाँ अगर हम विदाउट चेक इसको इनिशियलाइज कर देंगे ये हमको एरर फेंक देगा बेसिकली, अगर हमारे पास एम्प्टी एरे आती है तो.
ओके, सो इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए मैंने ये करा है यहाँ पर कॉन्टिन्यू के अंदर इनिशियलाइज बेसिकली। तो i इक्वल 0 से हमने लूप चलाया n तक प्लस प्लस। अगर हमारे पास i 0 आता है तो हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं एंड कंटिन्यू कर रहे हैं, बेसिकली आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर नहीं है ऐसा और टेम्प जो है वो छोटा है एरे ऑफ i से, तब हम इसमें ये डाल दें एंड काउंट को प्लस प्लस कर दें बेसिकली, एंड देन रिटर्न कर दे काउंट को। एक एग्जाम्पल के साथ ड्राई रन कर देख लेते हैं अपना प्रोग्राम। 10, 40, 23, 35, 50 and 7. So initially i is equal 0. ओके, टेम्प के अंदर एरे ऑफ i डाल दे, यानी कि टेम्प की वैल्यू क्या हो चुकी है अब 10। ओके, देन कंटिन्यू करा, बढ़ गए आगे। नाउ i की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 आया, 1 पर है 40। 10 जो है वो लेस देन है 40 से, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 40, और काउंट की वैल्यू क्या हो गई 2। नेक्स्ट i की वैल्यू हुई 2, 23। 23 इज लेस देन 40 इज लेस देन 23, नो, आगे बढ़ गया। 35 इज लेस देन 40, वो सॉरी 40 इज लेस देन 35, नो, आगे बढ़ा। 40 इज लेस देन 50, करेक्ट। तो यहां पर इसे चेंज करेंगे, काउंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे 3। 7 आया, 7 50 इज लेस देन 7, नो, तो नहीं गया, लूप एंड रिटर्न कर दिया हमने वैल्यू 3 विच वॉज एक्सपेक्टेड है। सो अब हम इसे करके देखते हैं रन, पर फर्स्ट इसको इरेज करते हैं। एंड नाउ लेट्स फर्स्ट कंपाइल इट। The output is correct. Let's submit it. Okay. So test cases are being all passed. यहाँ पर अगर आपकी सबमिशन सही है so you get points. तो I got 1 point here. And जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमको दे रखी है यहाँ पर, तो इतने के अंदर हमने करा है। सो लीड कोड वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हमारे मार्क्स है 10, तो हमने यहाँ पर स्कोर करे हैं 10 on 10. So you are understanding, right? 10 on 10 means, man, you are clearing the interview. You are there on the next stage. ये जो ब्रिज है, तुम अभी इधर की तरफ हो, you are definitely है, अगर तुमने इतने मार्क्स ले लिए हैं। ओके, सो हमने कोडिंग क्वेश्चन कर लिया, एक्सप्लेनेशन समझी। अगर कोई भी दिक्कत आती है रिलेटेड टू प्लेटफॉर्म, किसी और लैंग्वेज के अंदर अगर आप कर रहे हो और वहां पर कोई दिक्कत आ रही है, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट्स। एंड नाउ द हार्ट ऑफ द वीडियो विच इज bonus tip is coming soon, guys, so stay tuned. Don't even forget or don't even try to skip the video because bonus tip is coming soon. Welcome back everyone to the bonus tip section, the heart of the video presented by Programming World by मुस्कान गुप्ता। आज की बोनस टिप बहुत ही अलग लगेगी और मे बी आप लोगों को अजीब लगे, पर trust me, it had worked for a lot of working professionals, for a lot of students in real life. And this bonus tip is build your network during the interview. इंटरव्यू देते टाइम सिर्फ इंटरव्यू मत दो, नेटवर्क बढ़ाओ। नेटवर्क कैसे बढ़ाएं? क्या हम वहां पर लैन मैन या पैन करने बैठ रहे हैं, लाइक इस तरीके का नेटवर्क टोपोलॉजीज करेंगे, या हम वहां पर स्विचेस एंड राउटर्स लेकर जा रहे हैं जिससे हम वहां नेटवर्क बढ़ाएं? नेटवर्क ये सब नहीं है। नेटवर्क इज आप कितने लोगों को जानते हो, कैसे आप उनसे बात करते हो, एंड व्हाट आर योर रिलेशंस विद देम, दिस इज आल्सो नोन एज अ नेटवर्क. And I am saying it to you, build that network during the interview. It will first, फायदे क्या है इसके? Because फायदे के बिना कोई कुछ नहीं करता. It will help you to relax. इंटरव्यू को एज अ इंटरव्यू की तरह नहीं कंसीडर करोगे अगर जब आप नेटवर्किंग करोगे इंटरव्यू के दौरान भी, ठीक है? इंटरव्यू सिर्फ इंटरव्यू नहीं रह जाएगा. दिस विल बी अ प्लेस वेयर यू आर रिलैक्सिंग, वेयर यू आर टॉकिंग टू अदर पर्सन.
जस्ट एज बीइंग अ मेंटोर, और यू आर मीटिंग अ न्यू वन और अ न्यू पर्सन, और उनसे आप कैसे इंटरेक्ट करोगे, इंटरव्यू बातचीत में बदल जाएगा. एंड व्हेन इंटरव्यू बातचीत में बदल जाए, you will feel yourself more relaxed and more comfortable. That is something that is really important when you are giving an interview, because अगर आपका दिमाग ही रिलैक्स नहीं है, how will you able to perform or give your 100% during the interview. आप इंटरव्यू के टाइम पर स्कैर्ड रहोगे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, which will not help you at all. बस आपके क्या है, दिमाग का प्रेशर बढ़ाएगा, और हमारा दिमाग है, प्रेशर कुकर नहीं है, तो हमने इसका प्रेशर नहीं बढ़ाना है. इसलिए प्रेशर को कम करिए और रिलैक्स करिए इंटरव्यू में जब आप नेटवर्क करोगे तब. नाउ इट विल हेल्प यू एट लेटर स्टेज पे कैसे हेल्प करेगा. सो बेसिकली कुछ लोग ये भी कहेंगे इंटरव्यू इज इंटरव्यू और वो हमारी फाइनल स्टेज है, तो हमें आगे कैसे हेल्प करेगा. इंटरव्यू पर अगर आप क्लियर कर लेते हो, वेल एंड गुड फॉर यू, वहां पर आपकी जॉब लग गई. बट व्हाट अबाउट अगर इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते हो तो नाउ यू नीड, अगर आपने नेटवर्किंग करी है इंटरव्यू के टाइम पर, तो आप बेसिक शुरुआत से स्टार्ट नहीं करोगे कोई भी चीज. अगर आपने नेटवर्क कर रखा है तो लेट्स से आपको गूगल का इंटरव्यू आया और आप गूगल में इंटरव्यू दे रहे हो, पर इंटरव्यू के टाइम पर आपने इंटरव्यूअर्स के साथ इस तरीके से बातचीत करी कि नाउ यू आर अ नेटवर्क, यू आर मोर देन जस्ट बीइंग इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई, यू आर फ्रेंड्स और यू आर मेंटोर. लाइक यू हैव कंसीडर्ड द इंटरव्यूअर एज अ मेंटोर, जो आपको आगे हेल्प कर रहा है टू इम्प्रूव योर स्किल्स, टू मूव ऑन इन लाइफ, और आगे क्या स्किल्स एक्वायर करनी है एटसेट्रा. ओके, तो जब आप दोबारा से व्हेन यू आर लाइक लेट्स से 1 मंथ और 2 मंथ बाद, या जो भी उनकी पॉलिसी होती है, उतने टाइम के बाद आपने प्रिपेयर करा, सारे स्किल्स को डेवलप करा, जहां जहां आप पिछली बार लैक हुए थे आपने उन पर फोकस करा. सो नाउ अब आप फर्स्ट थिंग बिल्कुल शुरुआत से शुरू नहीं कर रहे हो. यू हैव अ पर्सन इन दैट कंपनी जिसको पता है कि इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं. सेकेंड, उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देखी है, सो ही विल बी एबल टू बेटर टेल यू कि आपको कहाँ कहाँ काम करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ एरियाज को बढ़ाने की जरूरत है. ओके, एंड व्हेन यू आर लाइक प्रॉपर रेडी फॉर देम, these will be the only people who will be giving referrals for you. आप लोग रेफरल्स यूज करोगे, रेफरल्स का कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, बस आपके इंटरव्यू की एक स्टेज कम हो जाती है. अब इसको ज्यादा भी समझ सकते हो, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, और कुछ भी नहीं समझ सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, बट ये इम्पैक्ट पड़ता है. इसीलिए नेटवर्किंग इंटरव्यू के टाइम पर अगर आप कर सको, इट्स वेल एंड गुड फॉर यू ओनली, बिकॉज आप तब इंटरव्यू को इंटरव्यू की तरह नहीं लोगे. यू विल बी टेकिंग इट एज अ नॉर्मल टेक टॉक और समथिंग लाइक दैट, which will help you to relax and perform to your utter best. Second is, it will be helpful for the later stage. So what if you have not landed the job there, but you have a connection now who will help you in future to get to land up a job there if you want. Okay, so this is the bonus tip, the very most important bonus tip of today, and these are the benefits. If you like today's video, today's question, today's bonus tip, etc., then do not forget to like, share and subscribe the channel. Share it with your friends. Sharing is a good deed. And कोई भी दिक्कत हो, कोई भी question, any query, just mention in comments and I'll definitely respond to that. मिलते हैं next video में. Until that, stay tuned to Programming World channel by Muskan Gupta. And at the end of the video, guys, I would like to say you all stay safe, stay healthy. Bye bye. Love you all, guys.